Hello, my dear students. How are you all? I hope you all are well, healthy, and safe at your home. Students, in your last lecture, we have discussed about double displacement reaction, and this was the last reaction that last type of chemical reaction. I would rather say that we are going to study because it is incomplete as one part is remaining. That is, its further classification. Okay, now double displacement reaction is classified into what? Three types. Okay, so the first one is what? Precipitation. Okay, second is what? It has been classified into gas formation, and the third one is nothing but neutralization. Okay, so this double displacement reaction is basically divided into three types: precipitation, gas formation and neutralization. तो हम इसको एक एक करके एक एक इंडिविजुअल एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे. Okay, so it will become easier for you to understand it in a more better way. So let us start with the first one, precipitation. So when I taught you precipitation, I have done an experiment where lead nitrate, okay, lead nitrate was getting reacted with potassium iodide to give you lead iodide, okay, and potassium nitrate, KNO3. Right, so this reaction is balanced actually. So here what was happening, when this particular reaction was going on, a yellow color precipitate was formed, है ना, एक yellow color का precipitate बना था. Because of what? Because of lead iodide. See, in the initial stage when lead nitrate and potassium iodide were individual, they were what? Transparent. Okay, they were colorless actually, but when they combine, when they got react with each other, what we got an insoluble precipitate. Okay, that is nothing but the lead iodide, right? तो वो जो येलो कलर precipitate बना था, precipitate का मतलब ही क्या होता है कि which is insoluble. ओके, सो वो जो हमें मिला था वो किस वजह से था? वो लेड आयोडाइड की वजह से था. ओके, तो यहाँ इस रिएक्शन में हमने देखा था कि आयंस वर एक्सचेंज, राइट. अब यहाँ आयंस एक्सचेंज हुए थे, हमें यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ था. अब मैंने आपसे यहाँ कहा था कि जो डाउनवर्ड मार्क है वो क्या डिनोट करता है? डाउनवर्ड एरो डिनोट्स अबाउट व्हाट? फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट. ठीक है, तो हम जब कभी भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कोई होती है, अगर उसमें का कोई एक पार्ट, एक रिएक्शन में आपको प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, यू हैव टू शो इट विद अ डाउनवर्ड एरो resembling what? That there is a formation of precipitate. Okay, now next is what? Gas formation. Now in double displacement reaction there are several gases that are soluble with water, but there are certain exceptions, like there are certain gases which are insoluble. See beta, whenever we are doing a reaction, most of them are in aqueous medium, है ना. हमें पता है कि बहुत सारी रिएक्शंस हमारे किस में? एक्वेस मीडियम में होती हैं. एक्वेस मीडियम मतलब क्या? मीन्स वाटर मीडियम में कर रहे हैं. सो जो गैस फॉर्मेशन होता है दैट आर सॉल्युबल इन वाटर, बट ऑल्सो देयर आर सर्टन गैसेस दैट आर नॉट, okay, that are insoluble in water. So how you are going to identify it? See, to understand this in a better way, there is an example of carbonic acid. Okay, carbonic acid. So when carbonic acid is getting reacted, it gives you water and carbon dioxide, okay, which is getting liberated. So बेटा कार्बोनिक एसिड में क्या हो रहा है? देखिए कहाँ मिलेगा आपको कार्बोनिक एसिड? आप जो सोडा पीते हैं, है ना, कोका कोला, उसमें देखिए कार्बोनिक एसिड प्रेजेंट होता है. ओके, क्या होता है जब आप उसका कैप ओपन करते हैं, यू हियर अ पॉप साउंड. ओके,
this pop sound is nothing but the formation of what? Carbon dioxide gas. Okay, जो वो हमें एक गैस्पिंग गशिंग सा गैस सुनाई देता है ना, दिखाई देता है, दैट इज नथिंग बट ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट? कार्बन डाइऑक्साइड गैस. ठीक है, तो जब कभी भी ये आपकी सोडा बॉटल्स में आपको सुनाई दे या आपको दिखाई दे वो जो बबल्स फॉर्म हो रहे हैं, दिस इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट? Carbon dioxide gas. So in double displacement reaction there will be formation of what? Either a soluble gas or an insoluble gas. To identify which is it, you need to find out the reaction as well. Okay, now third one, that is neutralization reaction. So in neutralization reaction, we all know that when an acid reacts with a base, it gives you salt and water, right? So for this we have a perfect example where hydrochloric acid getting reacted with sodium hydroxide to give you what? Sodium chloride and water. Okay, so hydrochloric acid reacting with NaOH, that is sodium hydroxide, giving you sodium chloride and water. So what is happening over here? An acid is getting reacted with base to give you what? A salt and water. Okay, now here most important thing to remember is that ions are getting exchanged. Okay, here ions are getting exchanged. ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहे हैं? आयंस एक्सचेंज हो रहे हैं. तो ये बात हमेशा याद रखिए कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है? आयंस जो है वो एक्सचेंज होते हैं. So this was all about double displacement reaction where we have studied 3 types: precipitation, gas formation and the last one, neutralization. Now we are going to begin a very important topic, that is oxidation reduction. So whole this particular, after the balancing of chemical equation, this topic is really important with respect to your higher classes also. Like up till 12th you are going to study the same with one level up, I would say. हर बार हर क्लास में आप एक लेवल अप होते जाएंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक से. सो हम बेस जो है इसका स्टार्ट करते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस का. Okay, so before starting this, I would like to ask you that where we can say this oxidation or reduction reaction. See, in your previous particular, I would say experiments, okay, where what I have conducted to show you certain reactions. ओके, मैंने आपको कई सारे रिएक्शंस करके बताया, कई सारे एक्सपेरिमेंट्स बताए. उसमें से एक था रस्टिंग ऑफ एन आयरन नेल. सो यू वी ऑल नो व्हेनेवर एन आयरन नेल इज एक्सपोज्ड विद एयर और ऑक्सीजन और मॉइस्चर, it forms a rust, it forms a brown layer. Okay, so this is happening over what? Over a metal. Iron nail is getting rusted. Why? Because it has been exposed with oxygen or air, or we could say moisture. Next, where we can see whenever we cut an apple, if we keep that slice for few seconds also, we see certain deposition of a brown layer on the upper side. एक brown layer जो है upper layer पर deposit हो जाती है ना, होती है ना. तो क्यों होती है ये brown layer deposit होना, brown layer of rust जो है वो deposit होना. Even in butter also, if you have a homemade butter and if you keep it outside for a long duration, you will see that butter is getting rancid. Okay, rancid is what means you are getting a foul smell from that butter. Why I said homemade? Because the particular butter that you buy from or purchase from the market, they have preservatives in them. But homemade butter, we don't use certain preservatives, right? तो जो हमारा घर का बना हुआ बटर है उसको अगर आप बाहर रखें तो you will feel that rancidity, that foul smell coming out from that butter. So why it is happening? What is the reason behind it? See, in all the three, what the question is asking, why it is happening? So the answer is oxidation. Okay, oxidation means what? Oxidation reaction is going on in all the three particular sections. Like iron nail is getting rusted because of oxygen.
okay. This apple slice is getting brown because it is reacting with the oxygen. Also where in the third one, why the butter is getting rancid? Because of the presence of oxygen. So oxidation is going on. अब देखिए ऑक्सीडेशन का मतलब ही क्या है, सिंपल नाम से ही आप समझ सकते हैं, where ऑक्सीजन इन्वॉल्वमेंट इज गोइंग ऑन, है ना। इन सारे रिएक्शन में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन जो है या ऑक्सीजन इन्वॉल्वमेंट हमें दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ ऑक्सीडेशन की हम सिंपल लैंग्वेज में क्या डेफिनेशन लिख सकते हैं, बताइए। वी कैन से दैट ऑक्सीडेशन इज व्हाट, नथिंग बट एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ओके, addition of electron. And for reduction we can say it is removal of electron. So this is the basic simple language, simple definition that you need to keep it in your mind up till 12th, because 12th तक आपको ये सिंपल भाषा जहाँ मैं कह रही हूँ ऑक्सीडेशन क्या है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड रिडक्शन क्या है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये आपका 12th तक बेसिक डेफिनेशन जो है वो चलेगी। ये आपको समझना है कि ऑक्सीडेशन को या रिडक्शन को आपको समझना है, तो इसका सिंपलेस्ट तरीका क्या है, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन रिडक्शन को अगर आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है तो कैसे पढ़ेंगे हम, देखिए बहुत सारे हमारे पास रिएक्शंस है, ओके, जहाँ हम और सिंपलेस्ट फॉर्म में हम क्या पढ़ सकते हैं, देखिए ऑक्सीडेशन को अगर समझना है तो जैसे मैंने आपसे कहा, दिस इज रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रिडक्शन इज एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके। सो हियर ऑक्सीडेशन में इसकी टर्म क्या बता दी है हमें कि देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑक्सीजन। तो हम यहाँ और क्या लिख सकते हैं, दैट एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ओके, एडिशन ऑफ व्हाट, ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। रिडक्शन में क्या होगा, रिडक्शन में होगा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ओके, रिडक्शन ऑफ व्हाट, सॉरी रिडक्शन में क्या होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो बहुत सिंपल से बेसिक डेफिनेशंस है ऑक्सीडेशन रिडक्शन के, कि जहाँ ऑक्सीडेशन में क्या होगा, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, और वी कुड से एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पर रिडक्शन में क्या होगा, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और वी कुड से एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब इन सभी को सिंपलेस्ट तरीके से पढ़ने का, या अगर हमें पता करना है कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन है या रिडक्शन रिएक्शन है, तो आप रिएक्शन में देखिए, अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, ओके, अगर ऑक्सीजन जो है वो ऐड हो रहा है और हाइड्रोजन जो है वो रिमूव हो रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा ऑक्सीडेशन। अगर हाइड्रोजन ऐड हो रहा है और ऑक्सीजन जो है वो रिमूव हो रहा है, तो वो कहलाएगा रिडक्शन। बिल्कुल इसका अपोजिट, ठीक है। ऑक्सीडेशन में क्या है, ऑक्सीजन ऐड होगा, हाइड्रोजन रिमूव होगा, तो वो ऑक्सीडेशन कहलाएगा। रिडक्शन में हाइड्रोजन ऐड होगा और ऑक्सीजन रिमूव होगा, तो वो रिएक्शन होगी रिडक्शन की। इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं तो आपको ईजी हो जाएगा समझने में। पहले हम ऑक्सीडेशन के रिएक्शंस देख लेते हैं। यहाँ देखिए, व्हेन कॉपर इज गेटिंग रिएक्टेड विथ ऑक्सीजन वी गेट क्यूप्रिक ऑक्साइड, ओके। नाउ वी हैव टू बैलेंस दिस, okay, this is cupric oxide. Then calcium is getting reacted with oxygen to give you calcium oxide again. और what we could take over here, यहाँ ऑक्सीजन और कहाँ ऐड हो सकता है, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिसको आप ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड will get react with oxygen to give you sulfur trioxide, okay. So this will be your reaction, okay. Now sulfur trioxide also, तो बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जहाँ हम ऑक्सीजन को ऐड करते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर सभी जगह क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जो है वो ऐड हो रहा है, ओके। अब इसके अलावा आप कहाँ पर देख सकते हैं, देखिए मैंने एक आपको एग्जांपल बताया था जहाँ पर आप लेड सल्फर के साथ ऑक्सीजन को भी रिएक्ट कर सकते हैं, जहाँ पर लेड सल्फेट जो है हमें मिलता है, ओके, लेड सल्फेट। तो ये यहाँ आ जाएगा, ओके, ये रिएक्शन ऑफ बैलेंस हो गई है। यहाँ देखिए सभी जगह पर ऑक्सीजन जो है वो ऐड हो रहा है।
तो जहाँ ऑक्सीजन ऐड हो रहा है उसे हम पर्टिकुलर कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये सभी कैसी हैं, ऑक्सीडेशन को रिप्रेजेंट कर रही है, सभी जगह ऑक्सीजन जो है वो ऐड हो रहा है। अगर हम रिडक्शन की बात करें, है ना, तो रिडक्शन में भी बहुत सारे एग्जांपल्स है, लाइक हियर क्लोरीन इज गेटिंग रिएक्टेड विथ हाइड्रोजन सल्फाइड टू गिव यू HCl plus sulfur. So let us balance this. Okay. Here ethylene C2H4 getting reacted with hydrogen to give you ethane C6H4. Okay. This is ethylene and this is ethane. C4H6। इसके अलावा जहाँ पर ऑक्सीजन ऑल्सो गेटिंग रिएक्टेड, ये तो बहुत आपको पता है पॉपुलर वाला है हमारा, जहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स बनते हैं। अगर आपको विजिबल नहीं है तो मैं इस तरफ कर देती हूँ। तो यहाँ देखिए सभी जगह हाइड्रोजन जो है वो रिएक्ट कर रहा है टू गिव यू व्हाट, ऑक्सीजन। यहाँ इसको अगर हम बैलेंस करें 2 2, अब ये बैलेंस हो गया है। तो ये रिएक्शंस को आपको पहले चेक करना है कि बैलेंस है या नहीं। बैलेंस करने के बाद ही आप इन्हें पर्टिकुलरली क्या कर सकते हैं, रिएक्शन में बता सकते हैं। ओके, C2H6। चलिए अब यहाँ देखिए सभी जगह आपका क्या है, हाइड्रोजन जो है वो ऐड हो रहा है। हाइड्रोजन ऐड हो रहा है मतलब ये सभी क्या है, ये रिडक्शन के रिएक्शंस है। सो डिपेंड करता है बेटा कि आप किस तरीके से समझ रहे हैं। ऑक्सीजन ये सबसे बेस्ट तरीका है कि अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो वो ऑक्सीडेशन है, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो वो रिडक्शन है। अब यहाँ देखिए हमें पता है कि ऑक्सीडेशन की रिएक्शंस में हमने कहा रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अब हम इसके अलावा और क्या कह सकते हैं, इसकी एक और डेफिनेशन है, दिस इज द थर्ड डेफिनेशन व्हिच सेज दैट ऑक्सीडेशन इज एडिशन ऑफ electronegative atom. Okay, electronegative atom, and reduction is what, addition of electropositive atom. अब यहाँ देखिए मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ कि ऑक्सीडेशन में एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अब आपको पता है ऑक्सीजन इज व्हाट, ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव। व्हाई, बिकॉज इट इज हैविंग 2 नेगेटिव चार्ज। ओके, 2 नेगेटिव इसकी वैलेंसी है, तो इट इज हैविंग 2 नेगेटिव चार्ज। तो ये कैसा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है। व्हाट वी आर डूइंग, वी आर डूइंग द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इन द रिएक्शन टू शो ऑक्सीडेशन, बराबर है। तो जब हम एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ एक और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऐड करते हैं तो वो कहलाता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसी में यहाँ देखिए हाइड्रोजन ऑन दी अदर हैंड इज व्हाट, इट इज एन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम। सो हियर व्हेन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज गोइंग ऑन, व्हाट वी आर सेइंग हियर, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम इज गोइंग ऑन, है ना। हम एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। उस रिएक्शन को भी हम कहते हैं रिडक्शन रिएक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डेफिनेशंस, तीनों डेफिनेशंस आपको समझनी चाहिए और आपको याद भी रखनी है ना। अब यहाँ देखिए इसके फर्स्ट एग्जांपल में, व्हेन क्लोरीन वाज गेटिंग रिएक्टेड विथ हाइड्रोजन सल्फाइड, सो हियर सल्फर वाज गेटिंग रिप्लेस्ड बाय whom, by chlorine. Now why chlorine has replaced, because chlorine is more electronegative than the sulfur. Okay, so that is why it has replaced sulfur from here and here chlorine is placed. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब कभी भी कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ एक और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऐड होता है तो वो क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। और वही अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम के साथ कोई हो तो वो कहलाता है रिडक्शन रिएक्शन। तो यहाँ एग्जांपल्स की बेसिस पर आप इसको बहुत इजीली समझ सकते हैं। अब हमारे पास ये थोड़ा सा डेप्थ में है ना, इसको समझिए क्या कह रही हूँ मैं, कि 3 डेफिनेशन है हमारे पास। ठीक है, क्या कहते हैं ऑक्सीडेशन की रिएक्शन में, ऑक्सीडेशन क्या है, दैट इज
एडिशन ऑफ व्हाट ऑक्सीजन, या आप क्या कह सकते हैं दैट इज एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, या आप और क्या कह सकते हैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ व्हाट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम। ठीक है, चार तरीकों से आप इसको समझ सकते हैं। ऑक्सीडेशन क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। इसके अलावा अगर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है तो भी वो ऑक्सीडेशन है, रिमूवल ऑफ कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम हो रहा है तो भी ऑक्सीडेशन है। ये डेप्थ में है, ये आपको समझने की ज़रूरत है। ओके, इसको बहुत अच्छी तरीके से समझिए। ठीक है, अब यहाँ देखिए रिडक्शन क्या है, इसका टोटल रिवर्स। ठीक है, दिस इज व्हाट एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ओके, और वी कुड से एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम, या हम क्या कह सकते हैं रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन क्या है, दिस इज रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड इसका रिवर्स है रिडक्शन। रिडक्शन क्या है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, या रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो डिपेंड करता है कि रिएक्शन में आपको क्या पूछा गया है, ऑक्सीडेशन शो करना है या रिडक्शन शो करना है, या आपसे पूछ रहा है कि पर्टिकुलर दिस रिएक्टेंट आर अंडरगोइंग आइदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो पहले आप चेक करिए यहाँ पर प्रोसेस में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है या रिमूव हो रहा है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है या इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। ठीक है, एडिशन हो रहा है ऑक्सीजन का या रिमूवल हो रहा है, एडिशन हो रहा है हाइड्रोजन का या रिमूवल हो रहा है। डिपेंडिंग अपॉन दैट यू कैन इजीली आइडेंटिफाई ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। So this was all for today. In your next lecture we will be studying about redox reactions, so that are really important. Do note down all the equations and examples particularly, okay, so that you can have a basic idea about oxidation reduction, because this will be, you know, it will be with you up till 12th standard. So do note it down. Good day students, take care.